Okay, let us begin. So, the poem is Line Written in Early Spring, and this poem has been written by a very famous English poet. It is William Wordsworth, जैसे कि आप बॉटम पे देख सकते हो बेटा. विलियम वर्ड्सवर्थ. सबसे पहले तो हु इज विलियम वर्ड्सवर्थ. आई होप आप सबने इस पोएट के बारे में सुना होगा. विलियम वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, one of the most prominent English poets. Okay, and he was the founder of romantic movement. Okay, he was in love with nature. Okay, so he loved nature. Wordsworth loved nature, and not only loved, he worshipped nature. इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ की सारी जो पोइट्री है, majority of it revolves around nature. चाहे वो it can be beautiful meadows, farm, gardens, landscapes, lakes, etc. ठीक है, तो इन सब चीजों की वो बात करता है पोएट. Now let us begin with the poem. I'm going to start reading the lines. I heard 1,000 blended notes while in a grove I sate reclined. In that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. To her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. सबसे पहले तो let us look at the rhyme scheme of this poem. Rhyme scheme, I hope you understand बेटा. सबसे पहले फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे. I heard 1,000 blended notes. So फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? Notes. एंड दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? Reclined. तो ये दोनों अलग अलग साउंड्स हैं. दैट इज वाई नोट्स को हम दे देंगे नाम ए. ओके, एंड रिक्लाइंड विल बी बी. नेक्स्ट लाइन की जो लास्ट वर्ड है दैट इज थॉट्स. तो ये मिलता जुलता है किस वर्ड, किस साउंड से? नोट से. तो इसको हम फिर से बोल देंगे ए. एंड नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड इज माइंड, एंड दिस राइम्स विद रिक्लाइन. तो इसको हम क्या बोल देंगे? बी. नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड लिंक. लिंक इज, ना तो ये मैच करता है नोट से ना ही रिक्लाइन से, सो वी विल नेम इट सी. ran will be D, think will again be C, and man is D. तो राइम स्कीम क्या होगी इस पोएम की? ए बी सी डी. तो जब आपको क्वेश्चन आएगा राइम स्कीम का अगर आता है तो यू विल राइट व्हाट इज द राइम स्कीम. राइम स्कीम इज ए बी सी डी and so on. Now let us focus on the lines. I heard 1,000 blended notes while in a grove I sat reclined. So the poet talks about his surrounding. Where is the poet? The poet says that I heard 1,000 blended notes. I heard 1,000 blended notes. Blended notes means music. Okay? So he says, I'm sorry for the background noise. So he says that I heard 1,000 blended notes. Notes means noises. बहुत सारे मेरे को different sounds जो हैं वो सुन पा रहा हूँ मैं. While कब? When I am sitting in a grove. Grove क्या होता है? Grove is group of trees, garden. I sat. Sat means sat. मैं बैठा हूँ. Reclined. Reclined means relaxed. I am very relaxed and I'm sitting in a garden. और उस टाइम पे मुझे बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉइजेस सुन रहे हैं, बहुत सारी शोर सुन रहा है. इन दैट स्वीट नोट आई एम रियली एंजॉयिंग माय सराउंडिंग, सो आई एम इन अ वेरी गुड मूड.
when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. और आई एम वेरी हैप्पी एंड उसी टाइम पे along with that happy mood and pleasant happy thoughts, they also bring sad thoughts to my mind. All of a sudden my mood changes. The poet's mood changes, Wordsworth's mood changes, and he becomes really sad. Why is he sad? Let us move on to the second stanza. To her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. To her fair works did nature think the human soul that through me ran. Now nature, we know how William Wordsworth thinks of nature. He worships nature, पूजा करता है वो नेचर की. यहाँ पे भी वो क्या कहता है? कहता है टू हर फेयर वर्क्स. नेचर कहता है जो कुदरत होती है, इट इज ऑलवेज फेयर. फेयर मीन्स इट इज ऑलवेज अफेक्शनेट, इट इज ऑलवेज लविंग. वो कभी भी अनफेयर नहीं होती. ठीक है? द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी रैन. सो दिस ह्यूमन सोल दैट आई हैव, इसमें भी इट इज लिंक्ड विद नेचर. नेचर जो है मेरी सोल के साथ लिंक्ड है. नेचर runs in me, you know. Nature is a part of me, and much it grieved my heart to think. एंड इसीलिए क्योंकि नेचर मेरा ही एक पार्ट है एंड मैं एक पार्ट हूँ नेचर का, मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट. ग्रीव मीन्स सैडन मी. मुझे बहुत बुरा लगता है. फील सैड टू थिंक. माई हार्ट फील सो सैड टू थिंक. क्या सोच के? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द पोएम. अगर आपके पास बुक है तो इसको अंडरलाइन कर लो, नहीं तो किसी जगह पे इस लाइन को लिख लो. What man has made of man? Why do I feel bad? Why do I feel sad? मैं ये सुन के, ये सोच के sad हो जाता हूँ that what man has made of man? इंसान ने क्या बना दिया है इंसानियत को? What man? How much man has deteriorated man? कितना हम गिर चुके हैं. Through primrose tufts, I'm starting the next stanza. Through primrose tufts in that green bower, the periwinkle trailed its wreaths, and it's my fate that every flower enjoys the air it breathes. The birds around me hopped and played, their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. The budding twigs spread out of their fan to catch the breezy air, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. Now, in these three next stanzas, poet talks about beauty of nature. वो अब नेचर को एक्सप्रेस कर रहा है, नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है, हाउ नेचर इज फुल ऑफ पावर. अब इन तीनों स्टैंजास को मैं साथ ही में कवर करूंगी, ठीक है? बिकॉज द आइडिया कंटेन्ड इन थ्री स्टैंजास इज द सेम. थ्रू primrose tufts. Primrose tufts क्या होते हैं बेटा? These are flowers basically in that green bower. Bower is shade, छाया. तो शेड जो हमें ट्री से मिलती है, इट इज रियली कंफर्टिंग, इट इज रियली ब्यूटीफुल. हम सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं पेड़ों की जो शेड होती है, ठीक है? सो this green bower, this green shade of primrose tufts, the periwinkle trailed its wreath. Periwinkle is again a kind of a flower, ठीक है? Trailed its wreath. Wreath बेटा क्या होती है? Wreath, यू मस्ट बी अवेयर. आपको, आपने देखा होगा स्पेशली जो क्रिश्चियन लोग होते हैं या फिर कोई जब सोल्जर जब शहीद होता है तो उनको एक रीद, एक सर्कल होता है फ्लावर्स का, वो उनको दिया जाता है, वहां पे चढ़ाया जाता है, ठीक है? उस सर्कल दैट इज कॉल्ड अ रीद, ठीक है? फ्लावर्स, द फ्लावर्स दैट आर ऑफर टू द डेथ, सॉरी, ऑफर टू द डेड, दैट इज कॉल्ड अ रीद. आई एम श्योर आपने देखा होगा, वो सर्कल बना होता है फ्लावर्स का, दैट इज अ रीड. तो पेरिविंकल फ्लावर्स का भी एक रीड बना हुआ है, कहते हैं. सो बेसिकली ही इज एक्सप्लेनिंग द सराउंडिंग्स. वो वहां पे बैठा हुआ है
ग्रोव में, उस बाग में बैठा हुआ है वो, एंड ही इज एक्सप्लेनिंग क्या उसके आसपास है. देर आर primrose flowers, there are periwinkles, and it is my faith that every flower, and the poet says that I firmly believe, I deeply believe that हर एक फ्लावर जो होता है, हर एक फूल जो है, it enjoys the air it breathes. Just like we humans, we are living, just like we are living, वो कहता है हर एक फूल जो है वो भी जिंदा है. It breathes life and it breathes it and it enjoys the air it breathes. तो वो भी सांस लेते हैं हमारी तरह, and they also enjoy the fresh air that they breathe. And then he goes on to talk about birds. The birds around me hopped and play. So मेरे आसपास सिर्फ फूल ही नहीं है, birds भी हैं, and they're hopping. Hopping means jumping. आपने देखे होंगे, you must have observed birds sometime, किस तरह से वो hop करते हैं, jump करते हैं, and they are very playful. And their thoughts I cannot measure. Measure means understand. हालांकि कहते हैं मैं उनके थॉट्स नहीं पहचान सकता, मुझे नहीं पता वो बर्ड जब वो यहाँ इधर उधर घूम रहे हैं व्हाट दे आर थिंकिंग, बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड, लेकिन जो जितनी भी वो मोशन, जितना भी वो मोशन मीन्स मूवमेंट, जितना भी वो मूव कर रहे हैं, इट सीम्ड अ थ्रिल ऑफ प्लेजर. बट जितना भी दे आर मूविंग अराउंड, दे आर हॉपिंग, दे आर प्लेइंग, जो भी वो कर रहे हैं, उससे इट सीम्स, इतना तो पता चलता है, दे आर थ्रिल्ड, they are full of pleasure. Pleasure means happiness, enjoyment. They are really enjoying their being. अपनी existence को बहुत enjoy कर रहे हैं वो. And then he moves on to the twigs. The budding twigs spread out their fan. Twig क्या होती है बेटा? Twig होती है टहनियाँ, small branches. ठीक है, छोटे छोटे टहनियाँ जो हैं पौधों की, they are budding. वो भी फल फूल रही हैं, they are budding, they are growing. They're spreading out their fan to catch the breezy air. आप टहनियों को देखोगे कैसे दे आर मूविंग आउटवर्ड्स, वो ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ती है ना, बाहर की तरफ, तो उसको पोएट ने कंपेयर किया है फैन, बेसिकली कि जैसे वो अपने हैंड के साथ, अपने हाथ से ब्रीज को, एयर को, हवा को पकड़ रही है. सो यहाँ पे द पोएट इज कंपेयरिंग, यहाँ पे पर्सोनिफाई कर रहा है वो ट्विग्स को. personification बेटा क्या होती है? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फिगर ऑफ स्पीच. जब भी जब भी पोइट्री में किसी भी चीज को, इनएनिमेट चीज को, या फिर किसी आइडिया को, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी चीज को कंपेयर किया जाता है ह्यूमन के साथ. when any animal, any abstract idea is compared, any inanimate thing is compared to a human, उसको क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन. ओके, पर्सन की तरह ट्रीट करना किसी इनएनिमेट चीज को. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव हर्ड इन पोइट्री या फिर इन सॉन्ग, गानों में आपने सुना होगा, ठीक है, पोइटिक लैंग्वेज में मून, स्पेशली लवर्स, they talk about moon, that moon is talking to me, moon asked me, चांद ने मुझसे पूछा. Now चांद, moon is not animate, it is inanimate, लेकिन उसको ऐसे ट्रीट करना मून को कि वो बात कर रहा है आपसे, वो क्या होगी? मून की पर्सोनिफिकेशन होगी. ठीक है, आई होप द आइडिया इज क्लियर. तो यहाँ पे भी ट्विग्स को वो क्या कर रहा है? पर्सोनिफाई कर रहा है, कि जैसे हम हाथ बढ़ा के कोई चीज को पकड़ लेते हैं, just like that the budding twigs are trying to catch the breezy air. And I must think, do all I can, और मैं सोचता हूँ, and that is what I do, I think that there was pleasure there, and मुझे पूरा यकीन है that जब वो टहनियाँ ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं एयर को, they are also enjoying it. So they are also enjoying the breeze, the air they are breathing. जो भी सांस ले रहे हैं वो पौधे, they are enjoying that also. So in these three stanzas, चाहे वो flowers हैं, primrose, tufts, periwinkle, चाहे वो birds हैं, चाहे वो twigs हैं, टहनियाँ हैं, ठीक है, all of it is enjoying the air they are breathing. तो
बेटा ब्रीदिंग से पोएट क्या बताना चाह रहा है, दैट दे आर ऑल्सो sorry, they are also full of life, just like us, just like we are breathing, we are living, these are also living. And in the last stanza, the poet sums this poem up. लास्ट में पोएट क्या कहता है, if this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I not the reason to lament what man has made of man? So last में he sums it up and he says that if this belief from heaven be sent, which belief? Belief क्या होता है? विश्वास. This belief कहता है अगर ये सब बिलीफ सच है, कौन सा बिलीफ? जो हमने अभी पढ़ा कि flowers are full of life, birds are full of life, twigs, plants, trees are full of life, nature breathes, nature is full of life. कहता है अगर ये सच है, and heaven be sent means, you know, like nature tells us, God tells us this, that ये सारी चीजें जो हैं they are full of life, and such be nature's holy plan. Nature's holy plan, बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था that Wordsworth loves nature and he worships nature. होली क्या होता है? पवित्र, ठीक है, धार्मिक. तो कहता है कि नेचर, क्योंकि वो नेचर को वर्शिप करता है, इसीलिए नेचर का प्लान जो है, नेचर जो है उस वो जो भी करती है, कुदरत जो भी करती है, उसको वो क्या कहता है? उसका होली प्लान, कि उसकी पवित्र, उसकी वेज है नेचर की. ये सारे पार्ट्स है ना नेचर के, फ्लावर्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए. तो कहते हैं ये सारे नेचर का, कुदरत का एक पार्ट है. अब they are so beautiful, he says, it is all so pleasant, so beautiful, इतना सब अच्छा है, perfect है. Have I not reason to lament? Lament means feel sad, moan. क्या मेरे पास कोई रीजन नहीं है that I should moan, I should lament, I should feel sad? क्या मुझे सच में सैड नहीं होना चाहिए? क्या सोच के? That what man has made of man, कि इंसान ने क्या बना दिया है इंसान को ही. What man has made out of nature, what man has made out of man. What we were, if we look into the past, what we were, हम क्या थे और हमें क्या बना दिया है हम इंसान ने ही. So that is the poem. I hope it is clear. Basically, beta, the poet is talking about the cruelties that man has inflicted upon nature. ये हमें, ये बात कोई छुपी नहीं हुई बेटा, हम सब जानते हैं. We humans, how much we have affected the nature, um, the atmosphere of the nature. कितना हमने इसको हार्म किया है. किसी भी तरह का पोल्यूशन हमने छोड़ा नहीं, वेदर इट इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एवरी काइंड ऑफ पोल्यूशन हम उसके जिम्मेदार हैं. नॉट एनिमल्स, नॉट बर्ड्स, नॉट एनी अदर पार्ट ऑफ नेचर, बट वी आर ओनली द वन पार्ट ऑफ नेचर जो जिसने विच हैज जेपरडाइज्ड द होल नेचर, जिसने सब खराब कर दिया है नेचर के इस होली प्लान को. Not only pollution wise but otherwise also, we are the ones who are full of cruelty, चाहे वो animals के प्रति हो या फिर वो fellow humans के प्रति हो. So the poet is really sad. तो imagine करो, just try to understand the poem, कि किस तरह से वो पार्क में, एक गार्डन में बैठा हुआ है, and he is enjoying the birds, he is enjoying the nature around him, and all of a sudden उसके दिमाग में ये सारे ख्याल आते हैं कि ये बर्ड्स कितने प्यारे हैं, ये प्लांट्स कितने सुंदर हैं, हाउ ब्यूटीफुल आर दीज फ्लावर्स. बट देन उसके माइंड में सब वो वायलेंस आती है जिसके बारे में हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं. उसके दिमाग में वो सारी पोल्यूशन की बात आती है, जितना हमने इस प्लैनेट को नुकसान पहुंचाया है. ही थिंक्स अबाउट ऑल दैट, जितनी भी सब नेगेटिविटी के बारे में वो सोचता है, जिसका रीजन, द ओनली रीजन जो है वो कौन है? हम ह्यूमंस हैं. इसीलिए द पोएट इन द एंड थिंक्स and he says what man has made of man. That is the poem.
एक चीज़ ज़रूर बेटा लास्ट में आई एम गोइंग टू से दैट ये जो लास्ट की जो लाइन्स हैं, आई वुड लाइक यू टू कोट इन योर आंसर, ठीक है? ये आपने ज़रूर आंसर्स में लिखनी है। जब आप सेंट्रल आइडिया लिखते हो और इफ यू आर राइटिंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पोएम, तो आप इसको ज़रूर करोगे कोट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।